Yes, today we are to discuss some important aspect of this novel, Far from the Madding Crowd by Thomas Hardy. I hope you are very much familiar with these aspects. We have already gone through the text. As I promised you to provide with one or two important questions related with this novel Far from the Madding Crowd. As I told you, generally there are two types of questions. One is character based and another is theme based. And they are asked alternatively in your examination. लास्ट टाइम बेटा आपने ये नॉवल कंप्लीट किया था, जो स्टूडेंट क्लास में थे उनको पता है. अभी आपको फिर से ऑनलाइन डिलीवर करने का आदेश हुआ है. तो मैं आपको इस नॉवल से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फॉर्मूला, टैक्टिक्स, हाउ टू अटेम्प्ट बता रहे हैं. आप देखें, क्वेश्चन भी नोट करेंगे, क्वेश्चन दिमाग में रखेंगे. दो प्रकार के प्रश्न है वो सामान्यतया पूछे जाते हैं. पहला थीम, जो प्लॉट है उस पर आधारित, और दूसरा आप ये समझें कि जो कैरेक्टर है, खासतौर से जो मुख्य कैरेक्टर है उस पर आधारित है. अभी हम पहला जो प्रश्न है उस पर आते हैं. देखिए, क्वेश्चन आप नोट कीजिए, समझने का प्रयास करें. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी देयर इन योर एग्जाम. ऑल अदर कंटेंट्स ऑफ योर सिलेबस हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड. माइंड इट. Now we are almost up to the completion. Yes, trace the conflict between reason and impulse. Try to understand. Trace the conflict between reason and impulse, as quoted by Thomas Hardy in the novel Far from the Madding Crowd. What should we give? Conflict between reason and impulse. I have told you during that study, in human life, most of the time we use reason. At the same time, you and I cannot deny the importance of impulse, that is sentiments, emotions in our life. Both make the part and parcel of our life. As Hardy's stories are dominated by his heroines, or you can say female characters, they are guided by impulse most of the time.
But we can't say all the time. They also use reasoning. And only a few times reasoning justifies impulse or sentiments or emotions. Otherwise, they have a tussle. They have a tussle. And our mind is the battlefield where they conflict with each other. And who win? Sometime reason, other time emotions. Here, the role of both, very important, crucial, in every human being's life, and particularly when something fictitious is there, then these things are deliberately put into the characters. Here try to understand and enjoy the tussle, the conflict, contradiction between impulse and reason. So many times we say that she should have done like this or that. But he or she has his or her own arguments, reasons that I did so because that was there. Every incident can be justified. So many dimensions are there. बहुत सारे आयाम हैं. अब आपका नजरिया है कि आप कैसे देखते हैं. यहाँ पे देखिए हार्डी बहुत बड़े कलाकार हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, तो उनमें आपको ये चीजें ट्रेस करनी होगी. थोड़ा सा फिर रीजन काम में लेना पड़ेगा. देखिए, in the novel Far from the Madding Crowd, we find that Hardy has portrayed some characters who are guided more by impulse than reason. Some characters who are guided more by impulse than reason. कुछ एक कैरेक्टर ऐसे हैं जो impulse से, भावों से ज्यादा प्रेरित होते हैं बजाय तर्क शक्ति के. There are some others who are different from these and are guided more by reason. सिंपल सी बात है. कुछ दूसरे कैरेक्टर उनमें क्या सिस्टम है कि वो रीजन से गाइड होते हैं, तर्क ज्यादा लगाते हैं, माइंड खोपड़े का इस्तेमाल करते हैं. बॉलीवुड, ट्रॉय, फैनी एंड बाथशेबा आर इंपल्सिव कैरेक्टर्स. 3 और चौथा भी 4. बॉलीवुड, ट्रॉय, फैनी, बाथशेबा. फिर बता रहा हूं, बॉलीवुड, ट्रॉय, फैनी, बाथशेबा. 2 महिलाएं, 2 पुरुष. रीजन पर चलने वाले हैं, ध्यान में रखना. As a result of their impulsive actions, they suffer much in their life. देखिए, अब ये निगोशिएट करते हैं ज्यादा. निगोशिएट करते हैं तो क्या होता है? दैट impulsive portion of their character becomes heavier and they have to suffer more than those who follow reasons. They also have their reasons minded. We can't say that they are 100% reasonless. No. But the portion of impulsiveness
hangs heavier. That is the key in their character. Gabrielok is guided more by reason. Gabrielok, अब देखिए एक छोटा सा शब्द आता है, वहां पर आप लोग ध्यान नहीं देते. ध्यान इंपल्स और रीजन पे ही चल रहा है. अभी मैंने क्या है, छोटा सा बीच में क्या है, एक शब्द मोर, इस पे ध्यान देना है. 100% कोई इंपल्सिव नहीं है, 100% कोई रीजनिंग बेस्ड पर्सनैलिटी नहीं है. मोर और लेस, इन शब्दों को यूज में लेना है, दिमाग में रखना है, ध्यान देना है. गैब्रिएलोक है वो रीजन से ज्यादा प्रेरित है. एज ए रिजल्ट ही रिमेन्स काम एंड अनडिस्टर्ब्ड इवन इन हिज आवर्स ऑफ ट्रायल. जो व्यक्ति थोड़ा सा तर्क से ज्यादा प्रेरित होता है तो वो परेशानी के समय भी शांत रह पाता है. समझा लेता है अपने आप को कि ये समय बीत जाएगा, बुरा समय हमेशा नहीं रहेगा. इंपल्सिव है वो, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है. वो कूल कैरेक्टर रहता है. और लास्ट में आपको बताया था, आपने पढ़ा था, अल्टीमेट विनर इज गैब्रिएलोक. ही बिकम्स हैप्पी इन द एंड. ये तो हमने पढ़ चुके हैं. अंत में खुश यही होता है. बोल्डवुड इज द मोस्ट इंपल्सिव कैरेक्टर. सबसे ज्यादा भावनाओं में बहने वाला कैरेक्टर कौन है? बोल्डवुड. इन द बिगिनिंग ही इज सेन एंड सोबर, काम एंड कलेक्टेड. शुरुआत में तो उसको बड़ा सेन का मतलब बेटा समझदारी से है कि बड़ा समझदार शांत चित्त का दिखाया जाता है शुरू में तो, पर बाद में भावनाओं से ज्यादा प्रेरित होने लग जाता है. द वैलेंटाइन सेंट बाय बाथशेबा एज ए मेयर जोक मेक्स हिम लूज हिज गुड सेंस. बॉलीवुड कौन है? उसका जो पड़ोसी फार्मर है. अब बाथशेबा भी देखो कम नहीं है, फ्लर्ट करती है, झूठा लेटर भेज देती है वैलेंटाइन, तो वो उधर भावुक हो जाता है. अब ये थोड़ा बहुत तो देखो बेटा ड्रामा है, नॉवल है, तो इनमें चलेगा. Therefore they have some unique charm in themselves. He loses control over himself and acts in an unreasonable manner in many ways. फिर क्या है कि आदमी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है तो अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करने लग जाता है. He follows बाथशेबा like a mad lover. सनकीपन जैसा व्यवहार, बाथशेबा के पीछे एकदम पागल प्रेमी की तरह हो जाता है. At last he feels satisfied when he succeeds in getting a promise from Bathsheba that he would marry him after 7 years. और लास्ट में सेटिस्फाइड कब होता है? जब बाथशेबा उसको प्रॉमिस करती है कि ठीक है भाई, ट्रॉय अगर नहीं आएगा 7 साल तक तो लीगली कानूनी रूप से उसको मृत मान लिया जाएगा, तो मैं तेरे से शादी का विचार करूंगी. इनडायरेक्टली उसको अश्योरेंस दे देती है. He purchases presents for Bathsheba and packs him in packets, writing on them a date when Bathsheba would be his wife. अब भावुक है व्यक्ति तो क्या है, गिफ्ट खरीद लेता है बाथशेबा की वुड बी वाइफ मानकर कि मेरी भावी पत्नी तो यही बनेगी. तो आगे की डेट में और उस लिखता भी है पत्नी के लिए, बाथशेबा को मान लेता है. बाथशेबा वुड बी हिज वाइफ. ही इवन राइट्स बाथशेबा बोल्डवुड ऑन द पैकेट्स. ये देखो, अब बेटा अलग अलग जगह अलग अलग रिवाज होते. कहीं पर पिता का नाम साथ में लगाने का होता है, कहीं पति का नाम होता है. तो बाथशेबा है तो बाथशेबा के साथ बोल्डवुड, तो सरनेम या ये समझो कि बाथशेबा बोल्डवुड पेयर बना दिया, कपल बना दिया, जोड़ी बना दी, चीजों पे लिखने ही लग गया बंदा बाथशेबा बोल्डवुड.
His most impulsive action, shooting of Troy during the Christmas party, ruins him. It leads him to his life imprisonment. अब देखो सनकी होने का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि जिस पार्टी में जिस दिन वो हाँ बढ़ती है उसी दिन बाई चांस ट्रॉय आ जाता है। ट्रॉय आ जाता है। धरती पर तरह तरह के चंबे होते रहते हैं बेटे, पर क्या करता है, उसको बर्दाश्त नहीं होता कि ये ट्रॉय जीवित कैसे है, तो शूट कर देता है, सीने पे गोली मारता है ट्रॉय के, वो वहीं मर जाता है। तो वो तो मर गया, मारने वाले का जीवन भी तहस नहस हो जाता है। ध्यान में रखना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आइदर डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। अमूमन यही सजा मिलती है हत्यारे को, वो उसको भी मिल जाती है। ट्रॉय हैज बीन राइटली कॉल्ड द रेटिक चाइल्ड ऑफ इम्पल्स। ट्रॉय को भी क्या है कि इम्पल्स से चलने वाला एक मूर्ख बच्चा कहा गया है। ही लैक्स रीजन ऑल टुगेदर, उसमें रीजन का बड़ा भारी अभाव पाया जाता है। किसमें? ट्रॉय में। ट्रॉय ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है, ट्रॉय जैसा मन में आता है वैसा करता चला जाता है। ही रिफ्यूजेज टू मैरी फैनी आफ्टर हिज फैटल मिस्टेक इन वेस्टिंग टाइम एट ए रॉन्ग चर्च। देखो ये बड़ा जोक सा है। अब वो दूसरे चर्च में पहुंच जाती है, वो शादी के लिए बुलाता है तो फिर वापस मिलती है तो अब मेरे से वापस व्यवस्था नहीं होगी भाई, जिस समय बुलाया उस समय तो गलत चर्च में चली गई, एड्रेस बताया कहीं पहुंच गई कहीं, अब मैं वापस तेरे लिए व्यवस्थाएं नहीं कर सकता। His impulsive action after he sees dead Fanny ruins his appearance. और फैनी के जब मृत शरीर को, बॉडी को देखता है तो भी उसका जो आपा खो बैठता है, उससे उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। He ultimately gets his punishment, तो उसको उसका दंड मिल ही जाता है अंत में। He shot dead by बॉलीवुड उसको गोली मारता है, ये हमने पढ़ा है। Had he been guided by reason, he would have passed a happy life of ease and comfort. अगर वो दिमाग से चलता तो वो एक सुखी और सुविधा संपन्न जीवन जी सकता था। फैनी रॉबिन्स इज ऑल्सो इम्पल्सिव। फैनी जो महिला कैरेक्टर दिखाया वो भी भावुक है ज्यादा। She becomes so infatuated with Troy that she acts in an unreasonable, इतना ज्यादा उससे प्रभावित हो जाती है कि अतार्किक तरीके से व्यवहार करती है। As a result, she suffers and in the end dies in very unfortunate circumstances. तो क्या होता है, देखो सफर पीड़ा भोगनी पड़ती है और बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु को प्राप्त होती है। बाथशेबा इज नो लेस इंपल्सिव देन फैनी। देखो महत्वपूर्ण कैरेक्टर के बारे में लास्ट में बता रहे हैं कि बाथशेबा है वो भी फैनी से कम भावुक नहीं है। शी इज एन एलिजाबेथ इन ब्रेन एंड ए मैरी स्टुअर्ट इन स्पिरिट। दो बड़े कैरेक्टर हैं, दिमाग में भी कम नहीं है। ध्यान में रखना, एलिजाबेथ में राजा महाराजा जैसा दिमाग चलता है, पर हृदय से मैरी स्टुअर्ट बताया है। शी इज इंपल्सिव थ्रू एंड थ्रू, शुरू से आखिर तक भावनाओं से प्रेरित होती रहती है। शी रन्स टू यंग होप टू से दैट शी हैज नो लवर्स। देखो शुरू में ही दिखाते हैं कहानी के, उसको क्या बताने की, सिर्फ ये बताने के लिए पीछे भाग के जाती है कि भाई मेरा और कोई प्रेमी नहीं है। मैं आंटी ने जो बताया वो गलत बताया है, दैट शी हैज टू मेनी लवर्स, गलत बात है। ये बताने के लिए भावनाओं से प्रेरित है। शी सेंड्स ए वैलेंटाइन विद द रिमार्क मैरी मी टू बॉलीवुड। अब देखो यहाँ पे ये फ्लर्टिंग नेचर भी है, बॉलीवुड को एक मैरी मी लिख के भेज देती है, झूठा ही।
शी फॉल्स ए प्रे टू ट्रोयज फॉल्स चार्म्स। उसको झूठा भेजती है और ट्रोय के झूठे आकर्षण में खुद बन जाती है। ऑल हर मिसफॉर्चून आर ड्यू टू हर इंपल्सिव एक्शंस। देखो ज्यादातर समय क्या बताया गया है कि इंपल्सिव एक्शन के कारण उसका दुर्भाग्य आता है। इन द एंड शी रियलाइजेज हर मिस्टेक्स एंड डिसाइड्स टू मैरी गैब्रियल। ये अच्छी बात क्या है कि अंत में वो रियलाइज कर लेती है, महसूस कर लेती है कि मैंने भावनाओं में बहकर बहुत गलतियां की है जीवन में, इसलिए अब मेरे को सही तरीके से चलते हुए गैब्रियल ओक से शादी करके एक सेटल्ड लाइफ जीनी चाहिए। प्योर रीजन टेल्स हर दैट हर साल्वेशन लाइज ओनली इन दिस वे। और ये उसको सिर्फ तर्क से पता चलता है, प्योर तर्क, एकदम तार्किकता, रीजनिंग से कि भाई अब जीवन में मुक्ति कहाँ है, गैब्रियल ओक के साथ है। ओक इज सिंपल, tactless and unpolished, but he possesses the gift of reason and self control। बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट होता है कैरेक्टर का, सेल्फ कंट्रोल भी है और रीजन भी है, आत्मनियंत्रण है, संयम है और तर्क से चलता है। यद्यपि सिंपल सोबर व्यक्ति है, कोई शो ऑफ नहीं करता है। Once rejected by Bathsheba, he resolved never to ask her to marry him। एक बार बादशेबा ने मना कर दिया तो फिर क्या निर्णय कर लिया, बार बार इसके चक्कर नहीं काटेंगे। यो नहीं है कि पीछे ही पड़ जाए और रोजाना निवेदन करे, ऐसा नहीं है। एक बार मना कर दिया बस। He continues to love her, but he is always guided by pure reason and self-control। चाहता उसको हमेशा रहता है, ऐसा अंत में भी बताता है, मैंने तेरे को चाहना कभी नहीं छोड़ा था, पर अपनी हैसियत और नियंत्रण दोनों चीजें उसके पास होती है, उसके दिमाग में होती है कि मेरे को इनको छोड़कर नहीं जाना है। He remains calm even when he receives the greatest shock of his life। बड़ा झटका लगता है जीवन में, उसका सब कुछ तबाह हो जाता है, हमने पढ़ा है, फिर भी शांत ही रहता है, ज्यादा पजल्ड नहीं होता है। He is always guided by reason and always advises others also to act the most reasonable manner। गैब्रियल ओक है वो हमेशा रीजन से ही प्रेरित रहता है और दूसरों को भी रीजन से प्रेरित रहने के लिए ही मोटिवेट करता है। अब बेटा समझने की बात क्या है, देखो कि हम कभी ये नहीं कहेंगे दैट वी आर टू एक्ट only on the basis of impulse or reason। One should have maintained the balance between these two aspects of human personality। मनुष्य के व्यक्तित्व के ये जो दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, इनका जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, यद्यपि बड़ा कठिन है। ध्यान रखना, संतुलन बनाना कठिन है। भावुक हो जाना सिर्फ या सिर्फ तर्क पे चलना ज्यादा मुश्किल नहीं है। समय अवसर को पहचान कर कि इस समय हमें इस तरीके से निर्णय लेने हैं। ये बेटा आपका एक पहलू हो गया है। इससे जुड़ा हुआ अगला पहलू जो कैरेक्टर बेस्ड होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।